Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're all doing well by the grace of Allah. We are on to lecture number 19 of our chapter 17, and today we'll be learning about some more endocrine glands, which are adrenal glands, gut, and gonads. So let's start off with adrenal glands or adrenals. These are present on top of each of our kidneys. So if our kidneys are in pair, therefore we can say that adrenal glands are also in the form of a pair. They have two parts, outer part and inner part. You can see in this diagram that here you can see a pair of kidneys, and on top of that you can see a pair of adrenal glands. If we take a look at the structure of these adrenal glands, you can see that the outer part is called cortex and the inner region is called medulla. ये दोनों regions different hormones release करते हैं और उनके different functions होते हैं. So let's take a look at them. The hormones produced by adrenal cortex, ये जो cortex region है वो चार किस्म के hormones को produce करता है. These are cortisol, corticosterone, aldosterone and androgens. On the other hand, the inner part or the adrenal medulla produces two types of hormones. One is adrenaline, or we also call it epinephrine, and the second is noradrenaline, or we also call it norepinephrine. So these are the hormones which are in total produced by adrenal glands. अब इन दोनों parts में से जो glands इन दोनों regions में से जो hormones release हो रहे हैं उनके functions को हम separately देख लेते हैं. First let's talk about medulla hormones. Medulla में हमने कहा कि adrenaline और noradrenaline दोनों hormones produce होने हैं. These hormones are released under stress condition, any kind of stress that our body faces. तो वो adrenaline को produce कर देता है. एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन के अंदर डिफरेंस जो है दोनों के काम में, द ओनली डिफरेंस इज दैट एड्रीनालिन डायलेट्स आवर ब्लड वेसल्स while noradrenaline hormone constricts the blood vessels, and both of these things happen in certain region. सिर्फ कुछ specific regions के अंदर blood vessels dilate होती हैं और कुछ regions में constrict होती हैं. For example, adrenaline dilates the blood vessels in our muscles के अंदर ये काम होता हुआ नजर आता है when there is a stress, and noradrenaline at the same time constricts blood vessels but also in specific regions, for example in our gut. So these hormones, both of these hormones are working in the same way, and there is only a slight difference in their function. Another function that they perform together is to promote the release of glucose from our liver, where it is stored in the form of glycogen. So glycogen को break down करके ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं ताकि स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके. एंड ऑल्सो दे री इन्फोर्स द सिंपैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया. इट इज़ द सिस्टम विच इज़ एक्चुअली द फाइट और फ्लाइट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सो कोई भी स्ट्रेस या कोई भी अपसेट हमारी बॉडी को जब फेस करना पड़ता है तो जो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है उसके अगेंस्ट, दैट इज़ री इन्फोर्स्ड और इट इज़ इन्हांस्ड बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स. और अगर फॉर सम रीज़न देयर इज़ एन एक्सेस of these two hormones or the medulla hormones, it causes an increase in the blood pressure. और अगर ये over the long period of time blood pressure increase होता रहे या ज़्यादा increase हो जाए तो it can have even more harmful effect as well. Next up, let's take a look at the cortical hormones or the hormones which are produced in the cortex region of adrenal glands. These are four hormones. As I mentioned them before, हम इनकी chemical nature और इनके effects को one by one देख लेते हैं. सो जो हमारे पास कॉर्टिसोल हार्मोन है कॉर्टेक्स रीजन में प्रोड्यूस होने वाला, इट इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन नेचर, विच मीन्स इन इट्स स्ट्रक्चर देयर विल बी ग्लूकोज अटैच टू इट. कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी हो सकता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी हो सकता है, यानी कि इसका ग्लूकोज के साथ फंक्शन भी अटैच हो सकता है और मिनरल्स के साथ भी हो सकता है. एल्डोस्टेरोन जो है इट इज़ ओनली डेजिग्नेटेड to be a mineralocorticoid, which means it is its function is related to minerals in our body. and androgens के अंदर इस तरह की किसी भी कोई भी chemical classification हमें नहीं नज़र आती. इनके effects की बात करें तो as I said cortisol is a glucocorticoid, इस वजह से इसका ग्लूकोज के लेवल के साथ फंक्शन या उसके ऊपर इफेक्ट होगा. and what it causes is it increases the blood glucose level. So
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसने ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है, देयरफॉर इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना होता है या कम करना होता है। So it works, the cortisol works against insulin and it increases the blood glucose level. Second, we have corticosterone, which is gluco and mineralocorticoid, दोनों हो सकते हैं। इस वजह से इसने क्या करना है, ग्लूकोज और मिनरल्स दोनों के बैलेंस को मेंटेन रखना है। एल्डोस्टेरोन हमने कहा जस्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, विच मीन्स इट इज गोइंग टू मेंटेन द मिनरल्स इन आवर बॉडी, एंड स्पेसिफिकली कौन से मिनरल्स, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस जो है उनको रिटेन रखना है बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस इन द किडनी। किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन होती है और कुछ आयंस लॉस हो जाते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। एंड देन वी हैव एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस आर द हॉर्मोन्स विच डेवलप द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, यानी कि ये इसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स इंड्यूस कर देते हैं मेल्स के अंदर। So these are all the cortical hormones. You must remember their chemical composition as well as their effects in the form of difference, just like I have showed you right here. अगर हम कुछ डिफेक्ट्स की बात करें, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं इनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाएं, स्पेसिफिकली हम बात करें कॉर्टेक्स की, कॉर्टिकल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। कॉर्टिकल हार्मोन्स के अंदर डिफेक्ट्स यानी कि इसके अंदर इम्बैलेंस जो होगा उससे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए कॉर्टेक्स रीजन की, तो कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। देयरफॉर इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स, देयर इज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, इट इज अ डिजीज इन विच आर मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड एंड ऑल्सो आर मसल्स बिकम वीक एंड देयर इज अ लॉस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। सो एडिसन्स डिजीज किस वजह से कॉज हो गई है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड ऑल्सो वी कैन से ड्यू टू नो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। एंड इन दिस वे अगर कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो माइनर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड और हीट हमारी बॉडी इजीली ओवरकम कर सकती है, नॉर्मली बॉडी के लिए उनको ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह के स्ट्रेसेस, हीट, कोल्ड वगैरह लाइफ टेकिंग भी हो सकते हैं या लीथल भी साबित हो सकते हैं। Second defect that we see is Cushing's disease and it is because of hypersecretion. So यहाँ पर no production थी, यहाँ पर हाई प्रोडक्शन आ गई है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो कॉर्टिकल हार्मोन्स की तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है, और नुकसान हमें क्या नज़र आता है, देयर इज़ एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन, मसल्स एंड बोन्स वीकनेस एंड ऑल्सो हाई ब्लड शुगर लेवल विच becomes abnormally high in our body. So ये दो diseases जो हैं Addison's disease and Cushing disease are because of defects in the cortical hormones or the imbalance in cortical hormones. Next up we have gut. Gut is actually the digestive system's part, is actually another name that we call for our digestive system. लेकिन digestive system के अंदर ही हमारे कुछ ऐसे tissues हैं which perform the function of endocrine glands. वो टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और उनके अंदर से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड इन आवर गट, गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिन। यू मस्ट हैव heard their name in our previous classes as well. गैस्ट्रिन क्या की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक रीजन। सो जो स्टमक का लोअर रीजन है, पाइलोरिक रीजन, पेल्विक के नीचे वाला, पेल्विक का ऊपर वाला जो रीजन है, यानी कि जो जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, उस रीजन के अंदर जो म्यूकस की लेयर है वहाँ पर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन फूड। सो ये प्रोटीन फूड जो है ये ट्रिगर करती है गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को, और इसका काम क्या है, it causes the secretion of gastric juice in our stomach and we know that gastric juice is the basic component which is going to digest all of our food. So कहाँ से रिलीज हुआ, म्यूकोसा से, और किसने ट्रिगर किया इसकी प्रोडक्शन को, प्रोटीन्स, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है। ऑन द अदर हैंड वी हैव सिक्रीटिन हार्मोन, ये रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम की लाइनिंग जो है, वॉल जो है वहाँ से होता है रिलीज, और कब होगा, जब ड्यूडेनम की लाइनिंग या वॉल को
एसिडिक फूड टच करता है, यानी व्हेनेवर द वॉल ऑफ ड्यूडेनम इज in contact with acidic food, secretin hormone is going to be released, and what it's going to do is it's going to produce and release pancreatic juice. और pancreatic juice के बारे में भी हमें पता है, it is a very important, another important component of digestion of food, and also it increases the rate of bile production. सो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जो दो इम्पॉर्टेंट जूसेस हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं सिक्रीटिन की वजह से, और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है गैस्ट्रिन की वजह से. Next glands that we're going to talk about are gonads, or the sex glands which are present in male and female bodies. In females these are ovary, and in males these are testes. इन दोनों glands के अंदर different hormones release होते हैं. वो कौन कौन से हैं? Let's first talk about ovary. ओवरी में दो मेन हार्मोन्स रिलीज होते हुए हमें नजर आते हैं इन फीमेल बॉडी. वन इज एस्ट्रोजन एंड द अदर इज प्रोजेस्टेरॉन. ये प्रोड्यूस कब होते हैं या कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड, एस्ट्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द राइपनिंग फॉलिकल्स, यानी कि जो फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी जो है उसके अंदर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं. ये फॉलिकल्स बनते किन की वजह से हैं? हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कुछ हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. उसकी वजह से स्मॉल सैक्स बन जाते हैं हमारी ओवरी के अंदर. इन ओवरी के अंदर एक्चुअली एग्स ने लाई करना होता है या फर्टिलाइज होना होता है. सो ये जो फॉलिकल्स हैं जिस टाइम पे ये राइपन होते हैं या बन रहे होते हैं, इनका साइज बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन रिलीज होती है. ऑन द अदर हैंड प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चर्ड फॉलिकल्स. जब ये फॉलिकल्स जो राइप हो गए थे, जब वो रप्चर हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है. ये प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, एंड इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू द LH हार्मोन, और विच वी कॉल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब इन दोनों के कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर फीमेल बॉडी में होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के कुछ काम यहाँ पे लिस्टेड हैं. इट इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. सो फीमेल्स के अंदर जो सेक्शुअल कैरेक्टर्स इंड्यूस होने हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं. इट कॉजेज थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल. यूट्रस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी वॉल को थिकनिंग कॉज करता है. इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कॉजेज अ राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? इसने यूट्रस की वॉल को ब्रेक डाउन करना होता है. एंड वी नो दैट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली द wall of uterus is breaking down where there is supposed to be an egg attached in case of pregnancy. It also repairs the uterus wall after menstruation. So after it is broken down, the uterus wall, it is also repaired by this hormone estrogen. It also influences the uterine wall cells to secrete certain proteinaceous secretions in case अगर embryo ने fertilize करना है या उसने develop करना है ovary के अंदर, तो उस time पर एस्ट्रोजन की वजह से ही वहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस होती हैं जो एम्ब्रियो को नरिश करने में हेल्प करती हैं. ऑन द अदर हैंड प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं. इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये काम हो गया. सेकेंड, इसने क्या करना है? इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना है जिस टाइम पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है और न्यू ऑफस्प्रिंग ने प्रोड्यूस होना है. उसके लिए जिन चेंजेस की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं, जिसमें कुछ काम ऐसे हैं. देयर इज़ अ थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल्स जहाँ पे एम्ब्रियो ने अटैच होना है, और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जिन्होंने मिलकर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है. ये काम होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो सुप्रेसेस ओव्यूलेशन. Sometimes therefore it is also used in the birth control pills as well if there is a requirement for the elimination of ovule or egg. This hormone is also used then. Testis की बात करते हैं. मेल सेक्सुअल ऑर्गन या ग्लैंड. इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं, where spermatozoa are developed or the sperms are developed. So testis consist of coiled tubules, और इन tubules के अंदर sperms produce होते हैं. Also there are certain interstitial cells जो कि hormones produce करते हैं testis के अंदर.
वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन एंड 17B हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दो हार्मोन्स हैं, testosterone and 17B hydroxy testosterone. Both of these are produced in testes for the production of sperms. अगर इनकी प्रोडक्शन की हम बात करें इन्हीं दोनों हार्मोन्स की, तो these are produced by sex organs in fetus when the offspring is in fetus condition or is in immature form. उस टाइम पर भी ये प्रोड्यूस होते हैं, and also then they keep on producing throughout the life of a child or a young male until it reaches puberty, जिसके बाद ये constant हो जाता है, यानी कि until puberty इसका नंबर इंक्रीज होता रहता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहती है, और puberty यानी मेचुरेशन के बाद इसकी प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट्स, तो फीटस के अंदर जब ये डेवलप होते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, तो फीटस के अंदर इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. So when it is produced in fetus, it is going to develop sex organs in the fetus, and at puberty, at the time of maturation, it develops the secondary male characters or the male characters which appear after maturity or puberty. So these were all the glands which are included in the endocrine system of our body. And we have learned about their functions and their effects as well. Hopefully आपको समझ आ गई होगी. These can be a little tricky to remember, therefore I will suggest that you go through these videos multiple times, and also draw these difference or effects charts or these tables by yourself as well in the form of some notes, so it will be easy for you to learn them. So inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.